Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 23 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विच एडिशन ऑफ वज्र प्रहार एक्सरसाइज वाज हेल्ड रिसेंटली इन मेघालय। तो वज्र प्रहार एक्सरसाइज, देखो जब भी ऐसी एक्सरसाइज आती है ना तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो कौन सा एडिशन, लोकेशन, किन कंट्रीज़ के बीच में हुआ। तो यहाँ पे पूछा गया कि आपसे कौन सा एडिशन इस एक्सरसाइज का भी हमने ऑब्जर्व किया, तो ये 14th एडिशन रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि लोकेशन क्या रहेगी इस एक्सरसाइज की, तो वो है उमरोई मेघालय। ठीक, फिर नेक्स्ट चीज क्या याद रखनी है कि किन दो कंट्रीज के बीच में ये याद हुआ, वो एक्सरसाइज हुआ वज्र प्रहार, इंडिया एंड यूएसए की आर्मीज के बीच में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। और ये था 14वां एडिशन, 14th एडिशन। अगर मैं बात करूं 13th एडिशन की, 13वें एडिशन की, वो कहां पर हुआ था, तो वो बकलो में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। करेक्ट। एंड इस एक्सरसाइज को पहली बार स्टार्ट कब किया गया था, फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2010 में हुआ था। राइट। तो 14th इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में भी ये स्टार्ट हुई। 3 वीक लॉन्ग ये एक्सरसाइज रहेगी, मतलब 21 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 21 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक ये भी एक्सरसाइज चल रही है वहां पे। ठीक, फिर इसी के अलावा याद रखो अभी रिसेंटली एक मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई, मध्य प्रदेश के द्वारा। मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स को कंपनसेशन कौन प्रोवाइड करेगा, वो भी मध्य प्रदेश प्रोवाइड कराएगा। राइट। पहला ओपीडी इंडिया का, इंडियाज फर्स्ट ओपीडी डेडिकेटेड टू ट्रांसजेंडर्स। राइट। इंडिया की पहली ओपीडी डेडिकेटेड टू ट्रांसजेंडर्स कौन सी, क्या, किस हॉस्पिटल में इसको सेटअप किया गया, वो है RML हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ कौन सा एडिशन हुआ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का, तो 14th एडिशन अभी हमें देखने को मिला वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। कहाँ पर हुआ, मुंबई में हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। ठीक, फिर इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट अभिनंदन, इसके अंडर एयर इंडिया ने कितने एयरपोर्ट्स को लॉन्च किया गया या बात की गई, तो 16 एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वज्र प्रहार ये एक्सरसाइज थी, इसको 2 फेज में कराया गया था, और करेक्ट फेज 1 एंड फेज 2, और इंडिया और यूएस के बीच में थी। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था, तो पहला एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे ये कराया गया था परख के द्वारा। अब देखो एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे तो बेसिकली यहाँ पे जो बात की जाएगी ना, वो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के ऊपर बात की जाएगी।
यहाँ से जो डाटा निकल के आएगा उसका एनालिसिस करा जाएगा और उस एनालिसिस के बेसिस पे आउटकम्स जो आएंगी उनको इम्प्लीमेंट करके बेटर स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी ताकि बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके, उनकी लर्निंग इंप्रूव हो सके। अगर बात करें इस सर्वे की तो ये सर्वे आपका थर्ड 6th और 9th क्लास के बच्चों के लिए कराया गया था। एंड इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखेंगे, एफपीएमएस बच्चों के लिए कराया गया था, फाउंडेशनल, प्रिपेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पे इसको कराया गया। ठीक है, और यहाँ पे याद रखेंगे 3rd 6th और 9th क्लास के बच्चों को जहाँ पे भी उनकी लर्निंग में जो भी इंप्रूवमेंट की जा सकती है उनको आइडेंटिफाई करके उनको खत्म करने की यहाँ पे बात की जाएगी। फिर इसी के साथ साथ जो मेन फोकस रहेगा इस पे वो रहेगा लैंग्वेज पे एंड मैथमेटिक्स पे, बच्चों की लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को ग्रो करने की, फोकस करने की यहाँ पे बात की जाएगी फॉर दिस एफपीएमएस स्कूल्स। देन इसी के साथ साथ याद रखेंगे 80 लाख बच्चों पे यहाँ पे आपका ये सर्वे करा गया, जिसमें 3 लाख फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स थे, राइट। और एक और चीज़, ये जो एफपीएमएस है ना, ये स्टेजेस हैं, ये बताती हैं कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में, अभी जैसे फाउंडेशन छोटा बच्चा हो गया, उसके बाद 5-3-3-4 मॉडल पे ये एफपीएमएस बेस्ड रहेगा, राइट। फिर इसमें से स्टेट्स इंक्लूड की गई, मतलब पूरे इंडिया में हुआ बट एक्सक्लूडिंग छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, इनके अलावा। करेक्ट, तो राइट ऑप्शन क्या बनता है, परख के द्वारा ये कराया गया। अब परख क्या है, परख की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये था परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आई रिपीट, परख क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये आपका परख रहेगा, ये एक नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर रहेगा। इसको जनवरी 2023 में अभी इस्टेब्लिश किया गया था, एनसीईआरटी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, करेक्ट, ऑन द लाइंस ऑफ एनईपी 2020। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने यूपी में एक फाउंडेशन स्टोन ले किया लॉर्ड शिवा थीम स्टेडियम। कहाँ पर रहेगा, यूपी में, और किस थीम पर है, लॉर्ड शिवा बेस्ड थीम स्टेडियम रहेगा यूपी में। देन 42nd, या फिर मैं बात करूँ पहले 41st एंड 42nd या 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी ऐड की गई, वो है आपकी शांति निकेतन, जो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी रहेगी, वो है आपकी होयसाला टेम्पल्स, जो कहाँ पर है, कर्नाटका में। ठीक है, फिर पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपी का किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है परख, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको सेटअप किया गया था जनवरी 2023 में बाय एनसीईआरटी एंड एनईपी 2020 पर इसको बेस्ड रखेंगे। नेक्स्ट, विच मिशन वॉज सेलेक्टेड फॉर UNWTO's ग्लोबल लिस्ट ऑफ केस स्टडीज, तो वो रहेगा केरला आरटी मिशन। आरटी क्या है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ऑफ केरला। इसको अभी सेलेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल लिस्ट ऑफ केस स्टडीज के ऊपर, राइट। इसका एम क्या रहेगा, इसको ऐड करने का, कि यहाँ पर इसके ऐड करने से केरला में जो इको फ्रेंडली टूरिज्म है ना, उसको बढ़ावा मिलेगा। इको फ्रेंडली टूरिज्म को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इन केरला। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये तो ऐड की गई इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ केस स्टडीज़। इसके अलावा एक और चीज़ ऐड की गई है इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ केस स्टडीज़ फ्रॉम इंडिया, वो है महाराष्ट्र की तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, करेक्ट। ये इंडिया का अदर एक दूसरा प्रोजेक्ट कह सकते हैं जिसको ऐड किया गया टू द केस स्टडी टू बी फीचर्ड इन दिस UNWTO लिस्ट। तो UNWTO की लिस्ट में, की केस स्टडीज़ की लिस्ट में पहला तो हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ऑफ केरला, राइट, इस मिशन को ऐड किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पर ऐड करा गया, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर अगर हम इस केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की बात करें तो ये 20 अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया था बाय पिनराई विजयन, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, करेक्ट। एंड बेसिकली एम क्या था कि टूरिज्म को यहाँ पे हमें बढ़ावा देना है, इसीलिए। फिर अगर केरला की ही बात हो रही है तो केरला की इससे याद रखेंगे, केरला वो स्टेट बनी जिसकी हर डिस्ट्रिक्ट में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एक हॉल मार्किंग सेंटर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अगर UNWTO की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैड्रिड, स्पेन में इनका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी सेबी की चीफ मधाबी बक
इन्होंने इंट्रोड्यूस किया IRRA प्लेटफॉर्म। ये IRRA प्लेटफॉर्म क्या है? इन्वेस्टर्स रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। ये BSE पे लॉन्च किया गया एंड इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? चेयरपर्सन ऑफ सेबी कौन है? मधाबी पुरी बक। ये जो IIRA प्लेटफॉर्म है ना, इसको इनिशिएट किया गया बाय मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस अंडर सेबी गाइडेंस, जिसका एम रहेगा टू रिड्यूस द रिस्क जो कि फेस की जाती है बाय इन्वेस्टर्स इन द इवेंट ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस एट ट्रेडिंग मेंबर्स एंड्स बोथ एट प्राइमरी एंड डिजास्टर रिकवरी साइट्स। ठीक है। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे, सेबी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है टू फ्रीज द पोर्टफोलियोज लैकिंग पैन कार्ड KYC डिटेल्स एंड नॉमिनेशंस, उसको हटाया जाए। राइट, आई रिपीट, सेबी ने अभी जो रेगुलेशंस थी फॉर होल्डर्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज जिनके पास अभी पैन कार्ड या KYC डिटेल उन्होंने सबमिट नहीं किया है, उसको होल्ड पे लाने की बात की गई, उसकी रिलैक्सेशंस को ईज कर दिया है। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे, सेबी ने अभी अप्रूवल दिया यूनिफाई कैपिटल को फॉर द लॉन्च ऑफ द म्यूचुअल फंड बिजनेस। आई रिपीट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म यूनिफाई कैपिटल इन्होंने अनाउंस किया दैट दे हैव रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी टू एस्टैब्लिश अ म्यूचुअल फंड हाउस। करेक्ट, और इनके लिए परमिशन सेबी से इन्होंने 2020 में ली थी, लेकिन वो अभी तक अब जाके मिली है। फिर सेबी की बात करें, 12 अप्रैल 1988 में फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र एंड मधाबी पुरी बक यहाँ पे इनकी चेयरमैन रहेंगी। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया GDP लाइकली टू ग्रो बाय हाउ मच % इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24 एज पर ICRA। तो ICRA के हिसाब से इंडिया की जो GDP ग्रो करेगी ना, वो 7% से ग्रो करेगी। करेक्ट, इन सेकंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24। वहीं पे अगर हम बात करें RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से जो डाटा प्रोजेक्ट किया गया था वो था 6.5% का, लेकिन यहाँ पर ICRA ने जो प्रोजेक्ट किया वो है 7% का। फिर इसी के साथ देखें तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ है विल ईज टू 6.8% बिटवीन जुलाई टू सितंबर 2023, जो कि सेकंड क्वार्टर रहेगा। ये ड्रिवन रहेगा बाय सर्विस सेक्टर जहां पर 8.2% की ग्रोथ देखने को मिली, एग्रीकल्चर 3.5% एंड इंडस्ट्री 6.6% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पे ICRA ने मेंटेन किया एक GDP ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ 6% फॉर फिस्कल ईयर 24, प्रोजेक्टिंग अ स्लाइटली लोअर फिगर देन द MPC's प्रोजेक्शन ऑफ 6.5%। करेक्ट, ये प्रोजेक्ट होल फिस्कल ईयर 24 के लिए है, और यहाँ पे जो ग्रोथ ली ये सेकंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24 के लिए। ठीक है। ICRA की अगर बात करें तो कौन रहेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप CEO ऑफ ICRA? रामनाथ कृष्णन, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, एंड 1991 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। राइट, इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए, ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम कहाँ पर? असम में लॉन्च की गई थी। राइट, फिर इसी के अलावा इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन द ग्रासरूट क्रिप्टो अडॉप्शन? इन ग्रासरूट क्रिप्टो अडॉप्शन में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो इंडिया 52nd पोजीशन पे आ जाता है इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। तो याद रखेंगे, अभी एक बुक है आलंदा पाची। करेक्ट, ये बुक तमिल में लिखी गई थी। इस बुक को फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया इनटू फायर बर्ड। राइट, और ये जो बुक है आलंदा पताची, ये ऑथर किसके द्वारा की गई थी? पीरूमल मुरुगन के द्वारा। राइट, और इन्हीं को पीरूमल मुरुगन को अब यहाँ पे सम्मानित किया गया है JCB प्राइज से। ये JCB प्राइज दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। करेक्ट, एंड यहाँ पर इनको 25 लाख रुपए कैश प्राइज भी दिए गए। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये जो फायरबर्ड रहेगी ये बुक इंग्लिश में है एंड ये बुक आपकी तमिल में थी। करेक्ट, एंड इसको ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया? जनानी कन्नन जी के द्वारा इस बुक को ट्रांसलेट किया गया, पब्लिश किया गया पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। एंड ये 5th ट्रांसलेटेड वर्क है जिसको अभी JCB प्राइज से सम्मानित किया गया इन लिटरेचर। राइट, नेक्स्ट आ जाता है फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली, जिनको दादा के नाम से जानते हैं या फिर जो हमें एक और नाम से जानते हैं दादा के अलावा, वो क्या है? प्रिंस ऑफ बंगाल। करेक्ट, तो इनको यहाँ पर अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया गया है वेस्ट बंगाल का, ममता बनर्जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। एंड इनसे पहले अगर देखें तो शाहरुख खान यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर थे। करेक्ट, शाहरुख खान यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर थे वेस्ट बंगाल के सिंस 2012, और अब दादा को, जो कि सौरव गांगुली है, इनको यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 1998 में। राइट, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 2004 में। करेक्ट, नेक्स्ट पर आते हैं फिर लक्ष्मी रामाकृष्णन श्रीनिवास, इनको अपॉइंट किया गया एडिशनल डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक।
तो डायरेक्टली याद रखेंगे कि इनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक, वो भी 3 साल के लिए, वो है लक्ष्मी रामाकृष्णा श्रीनिवास। ठीक, साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, पीआर शेषधरी, एंड 1929 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। फिर इनकी बात करें तो इन्होंने स्टार्ट करा था अपना करियर एज द SBI बैंक पीओ, जो कि है प्रोबेशनर ऑफिसर 1985 में। देन इसके बाद इन्होंने ये डायरेक्टर की पोस्ट पे भी सर्व किया ऑफ स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज इन हैदराबाद तेलंगाना, एंड ये वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं ऑफ क्रेडिट एट SBI's न्यूयॉर्क ब्रांच इन USA। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स के ऊपर। फिर अभी CCI ने अप्रूव किया टाइटन का एडिशनल स्टेक बाय इन कैरेटलेन, और इसके बाय से याद रखेंगे टाइटन ने एक्वायर किया 91.9 लाख इक्विटी शेयर्स इन कैरेटलेन फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 4,621 करोड़ रुपीज़। यहीं याद रखेंगे इस एक्विजिशन से जो टाइटन का स्टेक है इन कैरेटलेन वो इंक्रीज हो गया टू 98.28% फ्रॉम 71.09%। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर। अभी DRDO एंड इंडियन नेवी ने मिलके सेकेंड फ्लाइट टेस्ट करा ऑफ एंटी शिप मिसाइल NSAM शॉर्ट रेंज का। आई रिपीट, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का भी सेकेंड टेस्ट किया गया। किसकी मदद से, किस हेलीकॉप्टर की मदद से, वो है इंडियन नेवी का सी किंग 42B मैरीटाइम हेलीकॉप्टर की मदद से ये सेकेंड टेस्ट करा गया है अभी इस NASM SR का, जो कि है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ये मिसाइल का नाम है, इसका सेकंड टेस्ट ये भी कराया गया। करेक्ट, इससे ही पहले याद रखेंगे जो पहला टेस्ट कराया गया था इसका वो था ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन बालासोर ओडिशा में। करेक्ट, फ्रॉम यूजिंग दिस सेम हेलीकॉप्टर IN सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर की मदद से। राइट, इससे जो इसकी प्रिसाइज गाइडेंस टेक्नोलॉजी ने उसका शोकेस यहाँ पर किया गया। एंड इसकी हेलीकॉप्टर जो कैपेबल रहेगा, इट इज़ अ हेलीकॉप्टर दैट इज़ फायर्ड मिसाइल। ये जो आपकी NASM है ये आपकी याद रखेंगे, ये एक आपकी हेलीकॉप्टर ऑपरेटेड मिसाइल रहेगी। इसकी आपकी बेसिकली जो स्मॉल बोट्स होती हैं और जो आपके OPVs होते हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम रहेगा। 55 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज रहेगी एंड ये 0.8 मैक की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट पर आते हैं तो अभी एक नई फ्रॉग की स्पीशीज डिस्कवर की गई, अ न्यू स्पीशीज ऑफ म्यूजिक फ्रॉग जिसका नाम है निधिराना नाउडिंग। राइट, ये नई स्पीशीज है, नई स्पीशीज ऑफ म्यूजिक फ्रॉग जो कि अभी डिस्कवर की गई कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट, और इस स्पीशीज के बारे में पब्लिश किया गया था इन द 15 नवंबर एडिशन ऑफ द साइंस जर्नल जूटैक्सा। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के ऊपर आते हैं तो अभी ICC के द्वारा एक नया स्टॉप क्लॉक सिस्टम लाया गया है इन मेंस ODI एंड T20 क्रिकेट टू रेगुलेट द टाइम टेकन बिटवीन द ओवर्स। मतलब जब बॉलिंग टीम ओवर्स के बीच में ज़्यादा टाइम ना लगा सके और हर ओवर के बीच में सिर्फ 60 सेकेंड्स का ही डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बॉलिंग टीम पे 5 रन की यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी। करेक्ट, तो ये एक नया स्टॉप क्लॉक सिस्टम लाया गया है ICC जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। एंड याद रखेंगे ये वनडे इंटरनेशनल एंड T20 इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लाया गया, टेस्ट में नहीं लाया गया इसको। ठीक है, करेक्ट, ICC के द्वारा। और कितनी की पेनल्टी होगी, 5 रन की यहाँ पे पेनल्टी हमें देखने को मिलेगी। फिर इसी के साथ साथ जो आपके एम्पायर्स हैं, बोथ मैन एंड वीमेन जो एम्पायर्स रहेंगे उनकी पे भी यहाँ पे सेम करने की बात की गई फ्रॉम जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स। ये दिखाता है कि इक्वल पे की बात कर रहे हैं हम, जेंडर इक्वलिटी को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिट्री के ऊपर। पद्मा अवार्डी डॉक्टर SS बद्रीनाथ जो कि फाउंडर हैं संकरा नेत्रालय के, इनका रिसेंटली निधन हो गया। राइट, तो पद्मा अवार्डी एंड एन एमिनेंट विट्रियो रेटिनल सर्जन। ये विट्रो रेटिनल सर्जन क्या होते हैं, विट्रो रेटिनल सर्जन बेसिकली वो होते हैं जो कि आपकी आइज की रेटिना की सर्जरी पे ध्यान देते हैं। करेक्ट, उसके बारे में देखते हैं कि जो दिक्कत है उसके हिसाब से बेसिकली कहें तो रेटिना की सर्जरी के लिए ये विट्रो रेटिनल सर्जन है। करेक्ट, पद्मा अवार्डी हैं, इनका निधन हो गया। SS बद्रीनाथ जी ये फाउंडर रहेंगे संकरा नेत्रालय अकेडमी के, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 83 इन चेन्नई तमिलनाडु। फिर इसी के अलावा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 1983 में। पद्मा भूषण से इनको सम्मानित किया गया जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 1999 में। एंड 1991 में इनको सम्मानित किया गया था डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड से भी। नेक्स्ट आते हैं फिर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 20 नवंबर को। एंड बच्चों के बारे में जो साथ बढ़ के बड़े हों, राइट, साथ बड़े हों, साथ खेलें, एक दूसरे के वेलफेयर में ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, करेक्ट, एजुकेशन पे ध्यान दें, हेल्थ पे ध्यान दें, सेफ्टी पे ध्यान दें, इसीलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम रहेगी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट।
नेक्स्ट आ जाता है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। 20 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे, एंड इस बार 34वां अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे ऑब्जर्व हमें किया गया। अफ्रीका की जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को सम्मानित करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इसकी थीम रहेगी एक्सेलरेटिंग अफ्रीकाज इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू एम्पावरमेंट ऑफ अफ्रीकन वीमेन इन प्रोसेसिंग फॉर एन इंटीग्रेटेड मार्केट। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। लेट्स स्टार्ट। 14th इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज जो कि है वज्रपहार, ये अभी हुई उमरोई मेघालय में। देन स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 कराया गया परख के द्वारा। केरला आरटी मिशन सेलेक्ट किया गया फॉर यूएनडब्ल्यूटीओ's ग्लोबल लिस्ट फॉर केस स्टडीज। देन सेबी की चीफ मदाबी पुरीबक ने इंट्रोड्यूस किया आईआरआरए प्लेटफॉर्म। इंडिया की जीडीपी लाइकली टू ग्रो बाय 7% इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24 एज पर आईसीआरए प्रोजेक्शन। देन फायरबर्ड ऑथर्ड बाय पिरोमल मुरुगन एंड ट्रांसलेटेड बाय जनानी कनन, इन्होंने जेसीबी प्राइज जीता फॉर लिटरेचर इन 2023। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल। लक्ष्मी रामाकृष्णन श्रीनिवास, इनको अपॉइंट किया गया एडिशनल डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक। सीसीआई ने अप्रूव किया टाइटन्स एडिशनल स्टेक बाय इन कैरेटलेन। डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया सेकंड फ्लाइट टेस्ट ऑफ एनएसएएम एसआर शॉर्ट रेंज सीकिंग हेलीकॉप्टर से। देन निधिराना नॉडिंग, ये नई फ्रॉक की म्यूजिक स्पीशीज है जो कि अभी डिस्कवर की गई इन अरुणाचल प्रदेश। एंड आईसीसी ने इंट्रोड्यूस किया एक स्टॉप क्लॉक सिस्टम इन मेंस ओडीआई एंड टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट, ताकि 2 ओवर के बीच में 60 सेकंड से ज़्यादा गैप ना हो सके, और अगर होता है तो बॉलिंग टीम पे 5 रन की पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। देन पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर एसएस बद्रीनाथ जो कि फाउंडर हैं संक्रांत नेत्रालय के, इनका रिसेंटली निधन हो गया। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे भी आपका 20 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ड्यूरिंग द 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स वीरदास ने अभी कौन सा अवार्ड जीता इन विच कैटेगरी? तो याद रखेंगे हम बात कर रहे हैं 51st एमी अवार्ड्स की। हुए कहाँ पर थे? न्यूयॉर्क यूएसए में। एंड यहाँ पे वीरदास ने इनको भी सम्मानित किया गया एमी अवार्ड से इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी, और ये पहले इंडियन कॉमेडियन बने हैं जिनको यहाँ पे एमी अवार्ड से सम्मानित करा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके चलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वो पहले इंडियन कॉमेडियन बने जिन्होंने एमी अवार्ड जीता ड्यूरिंग द 51st एमी अवार्ड्स, जो कि कहाँ पर हुए थे? न्यूयॉर्क यूएसए में। इसी के अलावा याद रखेंगे आपको, ये तो थे वीरदास, लेकिन अगर मैं पूछा जाए एकता कपूर, राइट, ये को फाउंडर हैं बालाजी टेलीफिल्म्स की, और इनको ऑनर किया गया यहाँ पे डायरेक्टरेट अवार्ड से, राइट। तो एकता कपूर जो कि बालाजी की को फाउंडर थी, इनको यहाँ पे डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये पहली इंडियन वीमेन फिल्म मेकर बनी जिनको डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित कराया गया। तो दोनों का याद रखेंगे, डायरेक्टरेट अवार्ड से कि इनको एकता कपूर, और वीरदास को किससे? पहले कॉमेडियन बने, कॉमेडी के लिए इनको एमी अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023? तो ये जो नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 है, इससे किसको सम्मानित किया गया? कौन है वो व्यक्ति? वो है सुजीत रॉय। ये फाउंडर हैं ऑफ ब्रेन अलाइव एआई के, राइट। एंड इनको ही अभी नासा इम्पैक्ट अवार्ड्स प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर यहाँ पे इम्पैक्ट की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो आप देख सकते हैं इम्पैक्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड एडवांस कंसेप्ट टीम। तो नासा के इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? सुजीत रॉय को। रीजन बीइंग फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, जो इन्होंने जियो स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट के लिए दिया अपना, जो इनका कंट्रीब्यूशन था इस प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपका जो जियो स्पेशल एआई फाउंडेशन मॉडल है ना, ये नासा एंड IBM ये रिसर्च इन्होंने कोलैबोरेट की यहाँ पे, एंड यहाँ पे इन्होंने ये पहला नासा का ओपन सोर्स जियो स्पेशल एआई फाउंडेशन मॉडल लॉन्च किया फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा, करेक्ट। एंड सुजीत रॉय ये पार्ट थे इस नासा की रिसर्च टीम के, एंड इन्हीं को यहाँ पे नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, सुजीत रॉय को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ACC ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ विनय M टॉन्से एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो हैं M टॉन्से। ACC के द्वारा इनकी अप्रूव किया गया अपॉइंटमेंट, एंड ये नवंबर 2025 तक, मतलब आने वाले 2 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट
किया गया है। इससे पहले ये डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सर्व कर रहे थे ऑफ एसबीआई और अब इनको यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है ऑफ एसबीआई। ये प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट किए गए थे 1988 में ऑफ एसबीआई। फिर उन्होंने काफ़ी अलग अलग जगह पे चीफ जनरल मैनेजर्स का रोल भी हेल्प किया। फिर इनको ओसाका ब्रांच में इन जापान एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना के भेजा गया 2009 से लेकर 2013 तक, राइट। और फिर एमडी एंड सीईओ की पोस्ट भी संभाली इन्होंने ऑफ एसबीआई फंड मैनेजमेंट फ्रॉम 2020 टू 2022 और अब इनको यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया है। एसबीआई की मैं बात करूँ तो चेयरमैन कौन रहेंगे, दिनेश कुमार खारा जी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में एंड 1955 में इनको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं लूक फ्रीडमैन। लूक फ्रीडमैन 60 साल के हैं, ये एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इनको अभी 23rd प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है लग्जमबर्ग का। आई रिपीट, लूक फ्रीडमैन ये मेंबर रहेंगे ऑफ क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी एंड ये 23वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं लग्जमबर्ग के। ये सक्सीड करेंगे जेवियर बेटल को जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड 2013 से 2023 तक वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे आपके लग्जमबर्ग के। लेकिन अब लूक फ्रीडमैन अपॉइंट किए गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस लग्जमबर्ग। ठीक है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनवेल किया 7th टाइगर रिजर्व को, जिसका नाम है वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और टाइगर रिजर्व जैसे आपके मध्य प्रदेश में जो हैं जैसे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुरा, पन्ना एंड संजय टाइगर रिजर्व। मूविंग ऑन, फिर आ जाता है आपका किस कंपनी ने रिसेंटली डिलीवर किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ये डिलीवर की गई। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड के द्वारा ये 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिलीवर किया गया टू इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, इन सितंबर नेशनल एजुकेशन डैश फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये NESTS की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है। बेसिकली ये कह रहा है कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको लॉन्च किया गया। इसका फेज 2 ऑफ द अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इन 54th एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में। तो क्या नाम रहेगा, यह है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इन सितंबर फसाई के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया डैश एज फूड एनिमल। तो फसाई के द्वारा मिथुन को रिकॉग्नाइज किया गया एज द फूड एनिमल। मिथुन ये आपको याद रखेंगे स्टेट एनिमल है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। एंड इसी के अंडर यहाँ पर आपको याद रखना है ये काफ़ी लो फैट फूड होता है, करेक्ट। काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। इसको कैटल ऑफ हिल्स के नाम से भी जानते हैं। एंड ये स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड का। एंड इसी को यहाँ पर अभी रिसेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया एज फूड एनिमल। नेक्स्ट, फसाई ने ही न्यू प्रोविजंस ऑफ डैश लॉन्च किया इन द ऑनलाइन फूड सेफ्टी कंपाइलेंस पोर्टल। तो ये स्पेशल कैटेगरी लॉन्च की गई है फसाई के द्वारा ताकि बेटर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स विल ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स एंड बायोगैस प्लांट्स जिनको रजिस्टर किया गया अंडर गोवर्धन। तो क्या नाम रहेगा उनका, किस ऑर्गेनाइजेशन है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा या किस स्कीम के अंडर ये लॉन्च किया गया। तो ये है MDA मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को एंड बायोगैस प्लांट्स को जो कि रजिस्टर्ड है अंडर गोवर्धन। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, उस मिनिस्ट्री का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया CRIIO फॉर गुड मॉड्यूल एंड ये लॉन्च किया गया इन एसोसिएशन विद ICC, BCC एंड यूनिसेफ के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे ICC, BCCI एंड यूनिसेफ के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया। एंड इसका मेन एम क्या रहेगा इस मॉड्यूल का, बेसिकली ये क्या है, जेंडर इक्वालिटी पे बात करता है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ये बात करता है। तो ये डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस या अथॉरिटी इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट विद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इनकेआम NPL के साथ टू डेवलप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक फॉर टेलीकॉम सेक्टर। तो कौन सी ऑर्गेनाइज किया है, किसने किया है, ये याद रखेंगे, वो है आपकी CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इन्होंने अभी रिसेंटली CSIR के नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी के साथ मिलकर एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक को सेटअप किया गया, राइट। तो ऑप्शन याद रखेंगे क्या रहेगा, CDOT। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर अभी सितंबर में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा स्किल्स ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया। ये बेसिकली क्या है, रूरल एरियाज में स्पेशली वीमेंस को यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड करने की बात की गई। यहाँ पे यूथ का टारगेट किया जाएगा, यूथ में स्पेशली वीमेंस को यहाँ पे टारगेट करने की बात की गई। एंड आने वाले 5 साल के अंदर
यहाँ पे 60,000 से भी ज़्यादा यूथ को स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई। इसके लिए एक स्कीम लॉन्च करी, स्किल्स ऑन व्हील्स। पूछा जा रहा है कि ये किसके साथ मिलकर लॉन्च करी थी, किस बैंक के साथ मिलके, तो इंडसइंड बैंक के साथ मिलके। और किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान लिखा है, पर यहाँ पे याद लिखेंगे ओम बिरला सर के द्वारा भी मिलके इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने रिसेंटली इंटीग्रेट किया मां नवजात ट्रैकिंग ऐप, जो कि है मंत्रा, विद बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम टू एलिमिनेट द इमीडिएट इशुएंस ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर न्यूबॉर्न्स एट द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मंत्रा के अंडर प्रोवाइड की गई कि स्टेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स में। ठीक है, फिर एक अभी लॉर्ड शिवा थीम स्टेडियम को लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा। इसका फाउंडेशन स्टेन को ले किया गया, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। लॉर्ड शिवा थीम्ड स्टेडियम ये आपका रहेगा। देन इंडिया का होयसाला टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की गई और ये 42nd साइट रहेगी। 41st कौन सी बनी थी, वो है शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। फिर पहला यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ, याद रखेंगे किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद स्टार्टअप ओडिशा टू लॉन्च ओडिशा स्टार्टअप फंड। एक ओडिशा स्टार्टअप फंड लॉन्च किया गया और ये फंड 100 करोड़ का फंड रहेगा। इस फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू एमएसएमईज ऑफ ओडिशा, ताकि उनको ग्रो किया जा सके, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए। इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे ओडिशा स्टार्टअप ग्रोथ फंड के साथ टाइप किया, वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने यहाँ पे टाइप करा। नेक्स्ट, नेम द एआई चैटबॉट फॉर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जो कि लॉन्च किया गया बाय कैलाश चौधरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेंगे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। वो रहेगा किसान ई मित्रा। तो किसान ई मित्रा वो एआई चैटबॉट का नाम है, जो कि किनके द्वारा लॉन्च किया गया, कैलाश चौधरी के द्वारा। एंड ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए स्कीम के लिए ये चैटबॉट को लॉन्च किया गया था। ये चैटबॉट प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को विद रैपिड, क्लियर एंड इजी रिस्पॉन्सेज के साथ। जो भी इनकी क्वेरीज होगी उनका इजी यहाँ पे ये रिस्पॉन्स दे पाएगा, जिस लैंग्वेज में वो समझ सकें। राइट, काफ़ी यूजर फ्रेंडली रहेगा एंड फार्मर्स की इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट फर्स्ट एडिशन ऑफ भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव को लॉन्च किया गया और इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल। तो ये इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ का है, गोवा का। गोवा में ही 37वें नेशनल गेम्स हुए थे और यहाँ पे जो मेडल टैली में जीता है वो कौन सी स्टेट रहेगी, महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया है इन मेडल टैली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। दूसरा, ल्यूपेक्स ये एक जॉइंट एफर्ट्स है बिटवीन इसरो एंड किस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और ये ल्यूपेक्स है क्या ये भी बताओ कमेंट करके। तीसरा, किस कंट्री ने होस्ट किया यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉन्फ्रेंस को। आई रिपीट, किस कंट्री ने होस्ट किया यूक्रेन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉन्फ्रेंस को। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए इस वीडियो में। जितने बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं मैं चाहता हूँ हर बच्चा यहाँ पे कमेंट करके आंसर करे, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे मुझे लाइक चाहिए इस वीडियो पे। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.